ऋतिक रोशन का ब्रांड HRX। Hrithik Roshan has been a fitness icon for more than a decade for millions of Indians. Wake up, keep going. Open your eyes today to a better tomorrow. And HRX by Hrithik Roshan crossed 1,000 crore rupees in revenue last year. Launched in 2013 with Myntra, ये ब्रांड फिटनेस और एथलीजर पर फोकस करता है, जिसकी वैल्यूएशन आज 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रियंका चोपड़ा's brand Anomaly launched in 2021, focusing on hair care products. It's the best thing that can happen for your hair. That's it. Is that enough? With Anomaly, we have created products that strengthen, nourish the foundation of your hair. Because when you have healthy hair, you can do anything with it. Our packaging is made with 100% recycled plastic because we care about our planet, as should you. Your hair care comes with endless possibilities. So embrace your inner Anomaly. Is currently at 3,800 crore valuation, जो इंडिया आते ही नायका पर सुपरहिट हो गया और आज ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहा है। कटरीना कैफ का K Beauty जो 2019 में शुरू हुआ। Many years I had a dream of starting my own beauty brand and How does it feel to be you? Are you easy with your cool and is the world easy with your heat? Is your head in the clouds or the ground beneath your feet? Do you feel fine like you're one with the divine? Do you know you're a diamond that's too shy to shine? Do you feel old? Do you feel new? Either way, it's okay to be you. Katrina Kaif's stardom definitely helped K Beauty get attention, but it was the product market fit that made people stay and buy these products repeatedly. और आज इंडिया के टॉप ब्यूटी ब्रांड्स में से एक बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ है सोनम कपूर का ब्रांड रेसन। I'm Riya. I'm Sonam, and this is Reason. This collection is for every Indian girl. Going to college, going to school, working, to provide the opportunity to be glamorous on a day-to-day basis. I've never been more excited. I think I'm more excited about this than I am about anything I've ever done. I think Sonam has been setting trends for years, and I think it's nice for her to share that. Reason is going to define the Indian woman, her comfort with contradiction. जो धूमधाम से लॉन्च तो हुआ, पर वुमेन्स अपैरल सेक्टर में कुछ सालों में ही गायब हो गया। शाहिद कपूर का स्कर्ट, Sculpt is an idea that has been in my mind for a while. It's something that's very close to my heart. Sculpt is about freestyling. It's something that I do for a living. It's something that we all do in different ways in life. It's about being yourself. It's about feeling free. It's about being functional. It's about movement. It's about free spirit. जो कि एक एथलीजर वेयर ब्रांड था, जिसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। और अनुष्का शर्मा का नूश। The idea of wanting to have my own clothing brand is something that I was thinking about for the past 4 to 5 years. I think it's just something inside me. Like I've always wanted to do things that gave me a sense of ownership on something. So even when I was a child, I remember trying to start a beauty parlor. So these were things that I was doing at an age where I don't think kids would think about all of this. अगेन वुमेन्स लेबल, जो शुरू तो हुआ पर अपनी पहचान नहीं बना पाया और साइलेंटली मार्केट से एग्जिट हो गया। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ सेलिब्रिटी ब्रांड्स आसमान कैसे छू लेते हैं और कुछ बस एक न्यूज हेडलाइन बनकर रह जाता है। क्या सिर्फ सेलिब्रिटी का चेहरा काफी नहीं होता? इंडिया में 10 सेलिब्रिटी ब्रांड्स लॉन्च होता है और उसमें से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल ब्रांड बन पाता है। बाकी सब करोड़ के एड्स, परफेक्ट पैकेजिंग और फ्लैशी लॉन्चेस के बाद भी क्वाइटली वैनिश हो जाता है। और आयरनी ये है कि गलती वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसके पीछे है बिजनेस, मार्केटिंग और एक क्लियर विजन की सॉलिड स्ट्रेटेजी। आज हम रिकॉर्ड करेंगे कि आखिर इन फेल्ड सेलिब्रिटी ब्रांड्स ने ऐसी क्या गलतियां की और सक्सेसफुल ब्रांड्स ने ऐसा क्या सही किया, और इन ब्रांड्स के फेलियर और सक्सेस से हम और आप क्या सीख सकते हैं। हमारी D2C ब्रांड बनाने की जर्नी के मार्केट रिसर्च फेज में हमें एक टॉपिक सडनली क्लिक हुआ कि बिसाइड्स हैविंग सच अ रेडी कस्टमर बेस, फैन फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया, कुछ सेलिब्रिटी ब्रांड्स क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ बिल्डिंग अवर D2C ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच। गाइस, इस चैनल के थ्रू हम आपको D2C एंड डिजिटल मार्केटिंग की गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं।
तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग एंड D2C को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. It's just one click for you, but it supports us to keep bringing more such valuable content for you. And quick D2C hacks and marketing tips के लिए हमारा Instagram and LinkedIn पेज भी आप फॉलो कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सबसे पहले बात करते हैं सोनम कपूर की ब्रांड रेसन की. कंसेप्ट था ट्रेंडी, अफोर्डेबल, हाई स्ट्रीट फैशन फॉर द मॉडर्न इंडियन गर्ल, इंस्पायर्ड बाय द 80s एंड 90s. आइडिया बुरा नहीं था बिकॉज सोनम कपूर हरसेल्फ इंडिया की अल्टीमेट फैशनिस्टा मानी जाती है. उनकी फैन फॉलोइंग उनके स्टाइल को एडमायर करती है. However, despite initial popularity, the brand couldn't establish a strong market presence and failed to generate profits. तो गलती क्या हुई? दोस्तों, रेसन ने 3 बड़ी गलतियां कर दी थी, जिसमें से सबसे पहली गलती थी उनका टारगेट ऑडियंस अनक्लियर था. ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए था या यंग प्रोफेशनल्स के लिए, या फिर ये एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड थी, ये कस्टमर्स समझ ही नहीं पाए थे. द ब्रांड वॉज मार्केटेड एज अफोर्डेबल, हाई स्ट्रीट एंड एवरीडे फैशन फॉर एवरी इंडियन गर्ल, बट लॉन्च विद द प्राइस पॉइंट्स अप टू 4,000 रुपीज, जो थी उनकी सेकंड गलती, विच इज प्राइस टू वैल्यू. ब्रांड अफोर्डेबल कहलाया, लेकिन शॉपर स्टॉप में इसके प्रोडक्ट्स की प्राइस फास्ट फैशन ब्रांड्स जैसे H&M या Zara से कम नहीं थी. कस्टमर्स को उस प्राइस पॉइंट पर वो वैल्यू फील ही नहीं हुई जो उन्हें दूसरे एस्टैब्लिश ब्रांड दे रहे थे. और थर्ड और सबसे बड़ी गलती रेसन ने की थी ओवर रिलायंस ऑन द सेलिब्रिटी टैग एंड ब्रांड मिसअलाइनमेंट. सोनम कपूर हरसेल्फ वाज द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ रेसन, बट इस सोनम का नाम ही काफी नहीं था. ब्रांड में वो USP ही नहीं थी. बस सिंपल डिजाइन थे जो सोनम कपूर के खुद के फैशन सेंस एंड स्टाइल से कंप्लीटली ऑपोजिट थे. और इन सारे रीजंस की वजह से ऑडियंस उनकी ब्रांड से कनेक्ट ही नहीं कर पाए. आपको क्या लगता है रेसन के बारे में? If you have heard about this brand, do let us know in the comment section. Next in the list of failed celebrity brands is Shahid Kapoor's Cult. शाहिद की इमेज एक फिट, अर्बन एंड कूल एक्टर की है, तो एथलीजर ब्रांड्स उनके लिए परफेक्ट फिट था. ब्रांड का फोकस था फंक्शनलिटी और स्ट्रीट स्टाइल का मिक्स. अब आपका सवाल होगा कि स्कल्ट का ब्रांड फेस एंड प्रोडक्ट दोनों ही कंप्लीटली अलाइन थे, तो फिर गलती क्या हुई? दोस्तों, स्कल्ट वाज अ विक्टिम ऑफ बैड टाइमिंग, डिपेंडेंसी एंड वीक ब्रांड रिकॉल वैल्यू. स्कल्ट जब 2016 में लॉन्च हुआ था, इंडियन एथलीजर वेयर सेक्टर अपने नेसेंट स्टेज पे था. टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के यूथ के लिए कंसेप्ट बिल्कुल नया था. प्रोडक्ट्स तो अच्छे थे, बट इंडियन कंज्यूमर सिंपली उसके लिए रेडी नहीं थे. और जब कंज्यूमर रेडी नहीं होता तो चाहे डिजाइन कितना भी कूल हो, प्रोडक्ट बस इन्वेंटरी बन के रह जाता है. स्कल्ट को एक्सक्लूसिवली आदित्य बिरला ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल abof.com पर लॉन्च किया गया था, और यही सबसे बड़ा रिस्क था. जब 2017 में abof.com ने अपना ऑपरेशन बंद करने का डिसीजन लिया तो स्कल्ट का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही कोलैप्स हो गया. नाइकी और एडिडास जैसे जायंट्स के कंपटीशन के कारण ब्रांड कभी भी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और कस्टमर बेस बना ही नहीं पाया, और abof बंद होते ही ब्रांड भी मार्केट से फेड आउट हो गया. अगर आपको हमारी ये केस स्टडीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड वानाबी एंटरप्रेन्योर बडीज के साथ, so that they can also learn something valuable out of this video. चलो moving on to the third failed celebrity brand, which is Anushka Sharma's Noosh. दोस्तों, this brand was all about making fashion accessible, comfortable and extension for her personality, easygoing style. Accessible western wear, the every woman focus, affordability, comfort and wearability. Easy styling and it was a great idea on paper. सारे boxes tick, right? But ये brand फंस गया plagiarism allegations में. लॉन्च के आसपास ही ब्रांड पर डिजाइन कॉपी करने के एलिगेशंस लगे. इससे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे रिकवर करना ब्रांड के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया. कस्टमर्स खराब क्वालिटी और पुअर प्रिंट्स के बारे में कंप्लेन करने लगे. कंफर्टेबल एवरीडे वेयर एक बहुत ही जेनरिक प्रॉमिस है. नूश कस्टमर को ये क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया कि वो दूसरे ब्रांड से बेहतर क्यों है. व्हाट वाज द नूश प्रॉमिस? ये मैसेज कभी क्लियर ही नहीं हुआ, और इन सारे रीजंस की वजह से नूश भी मार्केट से गायब हो गया. ये तो बात हो गई उन सेलिब्रिटी ब्रांड्स की जो फेल हो गए. अब देखते हैं कि जो ब्रांड सक्सेसफुल है उन्होंने ऐसा क्या जादू किया, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रांड से. गाइस, दिस ब्रांड स्टार्टेड फ्रॉम अ फिटनेस ड्रीम एंड इज वैल्यूड टुडे एट अ स्टैगरिंग 7,300 crore rupees. A brand which is rewriting the rules of celebrity driven brands in India. दोस्तों, ये वो ब्रांड है जिसके को-फाउंडर को हम जानते हैं एज अ मैन विद द ग्रीक गॉड लुक्स. You guessed it right. We are talking about Hrithik Roshan and his brand HRX.
दोस्तों ऋतिक रोशन इज फिटनेस एंड फिटनेस इज ऋतिक रोशन। ये 100% ऑथेंटिक कनेक्शंस जो कस्टमर्स को आपकी ब्रांड से जोड़ते हैं। ऑलमोस्ट हम सब ने ऋतिक रोशन का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखा है, which is the HRX story. This celebrity brand synergy and authenticity built a massive trust on the brand. This was the first masterstroke. The second masterstroke was a clear vision beyond products. HRX सिर्फ कपड़े नहीं बेचता, वो एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ का आइडिया बेचता है। उनका फोकस फिटनेस, परसिवरेंस और सेल्फ बिलीफ पर है। यह स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्टोरी कस्टमर के साथ इमोशनली इतनी कनेक्ट हो गई कि आज HRX is crossing 1000 crore in annual sales. The third brilliant move was strategic partnership with Myntra. Myntra के साथ टाइप करने के बाद HRX को पहले दिन से ही मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग पावर और मार्केट डेटा का एक्सेस दिया गया, जिसने इस ब्रांड को स्केल करने में बहुत हेल्प की। ये मेन 3 रीजंस के अलावा HRX के कपड़े अफोर्डेबल थे, क्वालिटी इंटरनेशनल ब्रांड जैसी थी, मास प्रीमियम ब्रांड पोजीशनिंग थी, which gave the consumers best of both the worlds. अब आते हैं कटरीना कैफ के के ब्यूटी पर। जब हम ब्यूटी ब्रांड्स की बात करते हैं तो सवाल ये है कि जब मार्केट में लैक्मे, लोरियल, मेबलिन जैसे बड़े एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और हाई कंपटीशन है, फिर भी के ब्यूटी ने अपनी जगह कैसे बना ली? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल के ब्यूटी ने अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने पर्सनली फॉर्मूलाज पर काम किया जो इंडियन स्किन टोन्स एंड कंडीशंस के लिए परफेक्ट हो। और जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर को डिजायर्ड रिजल्ट और वैल्यू देता है तो वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिकली जबरदस्त होता है। सेकंड रीजन फॉर द मैसिव सक्सेस ऑफ दिस ब्रांड इज इंक्लूसिव एंड एम्पावरिंग मैसेज। ब्रांड की टैगलाइन है इट्स के टू बी यू। उन्होंने हर स्किन टोन के लिए शेड्स लॉन्च किए और मैसेज दिया कि मेकअप एक चॉइस है, कंपल्शन नहीं। दिस इंक्लूसिविटी रेजोनेटेड डीपली विद द यंग इंडियन गर्ल्स। और थर्ड रीजन है नायका इकोसिस्टम एडवांटेज। नायका पर लॉन्च होने से के ब्यूटी को इंडिया के सबसे बड़े ब्यूटी बायर कम्युनिटी का डायरेक्ट एक्सेस मिला। नायका की मार्केटिंग मशीन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने ब्रांड को सक्सेसफुली लॉन्च और ग्रो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गाइस, which of these successful strategies did you find the most impressive? HRX's vision or K Beauty's product focus? Tell us in the comment section. And finally, Priyanka Chopra Jonas's Anomaly, which was launched in 2021, proved that charging just $6 can build the second wealthiest celebrity beauty brand globally. As an outsider with no beauty industry experience, she decided to create what she couldn't find, a premium quality haircare product at prices everyone could afford. यही था इस ब्रांड का कोर पर्पस और मैसेज था क्लीन, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल हेयर केयर। प्रियंका चोपड़ा ने लिटरली ब्यूटी इंडस्ट्री को सिंगल हैंडेडली डिस्टर्ब कर दिया with these 3 master strategies. प्रियंका जानती थी कि 86% कंज्यूमर्स हेयर केयर प्रोडक्ट को खरीदते वक्त सबसे ज्यादा प्राइस को ही कंसीडर करते हैं। फॉरेन ब्रांड्स के क्लीन प्रोडक्ट्स अक्सर बहुत महंगे होते हैं। एनोमली ने हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को एक एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पर ऑफर किया, जहां बड़े ब्रांड्स जैसे कि काइली कॉस्मेटिक्स $20 से $50 तक की रेंज में खेलते हैं। वहां एनोमली ने सीधा ₹500 या फिर $5.99 पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। दिस इज कॉल्ड रेडिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसका असर ये हुआ कि लॉन्च टाइम पे हर 7 सेकंड में एनोमली का एक प्रोडक्ट बिकने लगा। But to be able to create something which is clean, affordable, sustainable, and excellent at the same time is something I was really, really proud of. And when we brought it to Nykaa, we on the first day sold 1 Anomaly product every 7 seconds. And that just was amazing to me. और एनोमली कस्टमर के लिए एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड बन गया। सेकंड स्ट्रेटजी वाज सस्टेनेबिलिटी एज सेलिंग पॉइंट। एनोमली ने 100% रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज किया और बॉटल्स पर प्राउडली प्रिंट भी करवाया द वर्ड ट्रैश। इससे उन्होंने 20 टन्स ऑफ वेस्ट को रिसाइकल एंड रीयूज किया, जिससे 73% मिलेनियल्स उनके कॉस्ट से जुड़े जो सस्टेनेबल ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकते थे। थर्ड मास्टर स्ट्रेटजी, व्हिच आई पर्सनली थिंक इज द मोस्ट जीनियस स्ट्रेटजी ऑफ ऑल, which is founder as a first customer. दूसरे सेलिब्रिटी ब्रांड्स जो लॉन्च इवेंट्स, सेलिब्रिटी हाइप्स और बड़े बड़े एंडोर्समेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, वही प्रियंका ने खुद महीनों तक हर फॉर्मूला को पर्सनली टेस्ट किया, इम्प्रोवाइज किया। उन्होंने अपने रियल हेयर स्ट्रगल्स को शेयर किया, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पे ट्रस्ट हुआ और इस ट्रस्ट की वजह से एनोमली का रिपीट परचेस रेट 65% से भी ज्यादा हो गया। यानी लोग एक बार खरीदने के बाद सिर्फ यही ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रीफर करने लगे। आज एनोमली अप्रॉक्स $450 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू करता है। 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स अपने पहले ही साल में बेच चुके हैं, काइली कॉस्मेटिक्स को बीट कर चुका है और जैसे कि मैंने बताया रिपीट परचेस रेट इज एट रिमार्केबल 65%। ऑल ऑफ दिस मेड प्रियंका चोपड़ा जोनस सेकंड वेल्थीएस्ट ब्यूटी ब्रांड ओनर। सेलिब्रिटी ब्रांड्स की जर्नी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है अबाउट स्ट्रेटेजी, ऑथेंटिसिटी एंड मार्केट अंडरस्टैंडिंग की।
और इन केस स्टडीज से हम और आप क्या सीख सकते हैं। शाहिद के पास अच्छी फिजिक और स्टाइल था, सोनम कपूर के पास फैशन क्रेडिबिलिटी थी और अनुष्का के पास मैसिव फैन बेस था। फिर भी सब फेल क्यों हुए? बिकॉज ब्रांड बनाना सिर्फ कैमरा पे दिखने से नहीं होता। बिजनेस चलता है प्रोडक्ट की क्वालिटी से, कंज्यूमर के ट्रस्ट से, और ट्रस्ट बनता है एग्जीक्यूशन और ऑथेंटिसिटी से। नूश हैड क्वालिटी इश्यूज एंड लैक ऑफ क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी। स्कल्ट पुअर टाइमिंग एंड बिग स्ट्रेटेजी का शिकार बन गया एंड रेसन ब्रांड मिस अलाइनमेंट की वजह से मार्केट में टिक ही नहीं पाया। एंड ऑन दी अदर साइड ऋतिक ने ये समझा और ऑथेंटिक कनेक्शन पे ज्यादा फोकस किया, जिससे HRX एक ट्रेंड नहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। प्रियंका चोपड़ा's Anomaly defined a clear niche and purpose, and K Beauty ने शार्प फोकस किया अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस पे एंड क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन पे। सेलिब्रिटी का नाम ब्रांड को शुरुआत तो दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक ऑथेंटिक कनेक्शन, क्लियर विजन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ सेलिब्रिटी ब्रांड लॉन्च, don't get blinded by the glam. Ask this one question: is this brand built on hype or on purpose and execution? So that's it for today from my side. Guys, this was the harsh truth about celebrity brands, and I hope you got some valuable insights from this video. It doesn't matter कि आपके पास कितना फेम है या तो फिर कितने इन्वेस्टर्स या रिसोर्सेस है। All it matters कि आपके ब्रांड में ऑथेंटिसिटी, क्लियर कम्युनिकेटिंग मैसेज या तो एग्जीक्यूशन कैसा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट्स में आपके इस टॉपिक पे क्या थॉट्स है हमें जरूर बताइए। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो दैट यू डोंट मिस अनदर वैल्यूएबल एपिसोड फ्रॉम पिक्सेल एपेक्स लैब्स।